Good evening, dear student. Today we are starting chapter number 7 of macroeconomics. Please start chapter 7. Aggregate demand, aggregate demand, aggregate supply, and related concepts. So here important word is aggregate. Aggregate means total demand, total supply, and related concept. What is total demand? Demand can be understood by two concepts related to income and related to expenditure. So please write it refers to the demand of for all goods and services, in the economy. Second, it refers to the demand of all goods and services in the economy. Demands of all goods and services in the economy. And second हो जाएगा, it is calculated for one accounting period. It is calculated for one accounting period. Important thing is that flow of it. Flow, मैंने आंसर ही मैंने बता दिया. We have two concept, stock and flow. So it will be flow concept. Reason is that we calculate the demand for one accounting year. Generally, everyday demand the supplier can calculate, but we are reading aggregate. Aggregate means total. This is related to macro concept. So Government of India with the help of statistical department on the basis of survey, demand is calculated for one accounting year. So one accounting year means the year which is starting from 1st April to 31st March of the next year. So it is related to one accounting period. So it will be flow concept. इसको आप क्या बोलेंगे? Flow concept बोलेंगे. It is related to flow concept because it is related to 12-month period. Yes. Next is measure of aggregate demand. Measurement of aggregate demand. AD. Aggregate demand. There are two types of concept related to it with reference to general price level and with reference to income level. General price level or income level. So dear student, on the basis of this demand is related to price.
and in income level demand is related to income. So already we have discussed that demand rule. On the basis of price, it has inverse relation. If price will increase, demand will decrease. If price will decrease, demand will increase. So on the basis of general price level and on the basis of income level. तो इसके नीचे आप लिख लेंगे कि जो जनरल प्राइस लेवल पे होगा वो होगा, इसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या होगा, इनवर्स रिलेशन, inverse relation between price and demand. और इसका एक फीचर क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व विल डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. और इसमें हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. AD curve will be upward, upward sloping. Yes. So in class 12th, we have एग्रीगेट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल. ये आपकी बुक में है और आपको इसी को पढ़ना है. आपकी जो बुक में है ये किसके बेसिस पर है, इनकम के बेसिस पर है. जो प्राइस के बेसिस पर है जनरल प्राइस लेवल, वो हम पहले रीड कर चुके हैं और वो माइक्रो में है. स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है विच इज रिलेटेड टू माइक्रो प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इट हैज़ इनवर्स रिलेशन, and on the basis of income it has positive relation. Are you agree with me that the two statements are given, positive relation between income and demand? If income will increase, demand will increase, surely it will positive relation. And this curve is showing upward sloping. upward sloping का मतलब है जो ऊपर जा रहा है. देखिए आप, origin से start होगा and it will make 45 angles, 45 डिग्री का एंगल बनेगा. बिल्कुल इसका मतलब है कि जनरली इसमें जो रिलेशन होता है कि जितना हमारा इनकम इंक्रीज होगा उतना ही हमारा क्या है, इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर. एंड वेरियस थिंग्स आर रिलेटेड टू इट. नॉर्मली इनकम विल इंक्रीज बट एक्सपेंडिचर, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, बट मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू इट. Always we are having some autonomous expenditure. If we are having zero income, still we will have to spend something. पता है आपको इस बारे में? हमारा इनकम यदि जीरो भी होगा तो भी हमें कुछ ना कुछ स्पेंड करना ही पड़ेगा. That is known as autonomous expenditure. Autonomous expenditure. If your income is zero, still we will have to spend this, and our income will be negative. और हमारी इनकम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. हाउ इट विल बिकम नेगेटिव, बिकॉज अवर सेविंग विल स्टार्ट टू कंज्यूम. आपका यदि कहीं सेविंग है तो आप सेविंग को क्या करेंगे, यूज करना स्टार्ट करेंगे. सो आई वांट टू से हियर वी विल अंडरस्टैंड इट विथ टेबल दैट इफ अवर इनकम इज जीरो स्टिल वी विल हैव टू स्पेंड समथिंग. सो आई थिंक इट इज क्लियर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड. फर्स्ट इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल and second is related to income level. General price level is based on price
where price will increase, demand will decrease. Aggregate demand is not related to goods, it is related to both goods and service. And dear student, this demand is not related to physical goods, because physical goods are produced by industries, but actual demand is related to the goods which is coming into market. And market demand is related to expenditure. तो जैसे रॉ मटेरियल की डिमांड को आप एग्रीगेट डिमांड में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग द गुड्स, बट एक्चुअल डिमांड इज क्रिएटेड थ्रू मार्केट, एंड द प्रोड्यूसर आर मेकिंग द कमोडिटी, देयर बेस इज रिलेटेड टू मार्केट डिमांड. यदि प्रोड्यूसर कोई गुड्स भी बनाता है तो उसका भी अल्टीमेट टारगेट क्या है कि मार्केट में डिमांड होगी तभी वो उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. तो ये आपके कोर्स में जनरल प्राइस लेवल नहीं है, इनकम लेवल के बेसिस पर हम डिमांड को पढ़ेंगे. और ये देखिए इस तरीके से जाएगा आपका एग्रीगेट जो डिमांड होगा वो बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 45 का इसमें एंगल होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड क्या होगी, क्रिएट होगी. और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप इधर नीचे जो शो करेंगे वो इधर क्या शो करेंगे, इनकम, और इधर हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड, और या उसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं. On x-axis we will show income and on y-axis we will show expenditure. x-axis पे income होगा और y-axis पे expenditure होगा. Next, aggregate demand is measured not as the sum total of physical quantities of goods demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Only if we are having the physical demands of goods, for example, raw material, plant, machinery, by this we can't identify the total demand, because in our economic system we are using both goods and services, and physical goods is used by the producer, then producer will do some process, then finished goods will be created, and all the producers are having the target of the demand of the market. जो प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाता है तो उसका भी डिमांड क्या होता है, उसका भी जो टारगेट क्या होता है, वो मार्केट डिमांड ही होती है. एंड इन मार्केट वी आर हैविंग द डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज सर्विसेज ऑल्सो. तो इसमें गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होता है. तो इसमें आप नीचे लिखिए, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज measured in terms of total expenditure, on goods and services. Total expenditure. Already we have discussed income, national income. In national income, by the expenditure method, we were taking the total expenditure CIG X minus M, and where we were using GVA. GVA में आप देखिए इंटरमीडिएट को हमने क्या किया है, लेस किया है, क्योंकि इंटरमीडिएट को आप करेंगे तो उससे क्या होगी, डबल काउंटिंग होगी, तो वहाँ पर भी फाइनल गुड्स को लेते हैं.
और उधर फैक्टर पेमेंट में हम सारी क्या लेंगे, इनकम लेंगे। तो इसीलिए कभी भी क्या है कि ओनली फिजिकल गुड्स को हम डिमांड नहीं कह सकते, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों ही आएगी और वो भी आएगी एक्सपेंडिचर पैटर्न पे। एक और लिखिए, it is always expressed as what people wish to spend। लोग कितना खर्च करना चाहते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब है खर्च किया है वो नहीं, कितना खर्च करना चाहते हैं, विश को। बिकॉज एक्चुअल कंजम्पशन इज द कंजम्पशन, उसकी क्या कैलकुलेशन करेंगे आप, वो तो हो गया कंज्यूम। हाउ मार्केट विल रन, जितने भी मार्केट है वो बताइए किस बेसिस पर चलते हैं, विश। व्हाट इज द विश, हाउ मच पीपल वांट टू स्पेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर विश प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी एंड इट विल डिसाइडेड ऑन द प्रेजेंट इनकम। आज आपकी इनकम यदि 10,000 है और आपका स्पेंडिंग मान लो 8,000 है, तो नो डाउट वी कैन एस्टिमेट दैट इन फ्यूचर योर इनकम विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। तो बताइए इसके बेसिस पर प्रोड्यूसर से वो ज़्यादा गुड्स बनाएंगे या नहीं। नो डाउट वी ऑल आर हैविंग सेविंग्स। आप आगे ये भी रीड करेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग भी क्या होगी, स्टार्ट होगी। बिल्कुल, यदि सेविंग भी यदि स्टार्ट होगा ना तो एक्सपेंडिचर तो होंगे, बट होगा क्या कि उनकी जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग में हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगी वो इनकम से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बाद में एग्रीगेट डिमांड इनकम से क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 30,000 एंड योर स्पेंडिंग इज 20,000 या 25 मान लीजिए कि आपका इनकम 30 है तो आपका स्पेंड कितना होगा, 25 मान लो, आप 5 की सेविंग करते हो। अब मान लो कि जैसे दक्ष है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अब इनकी मंथली इनकम 1,50,000 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1,50,000 है तो अब आपका कंजम्पशन 1,30,000 हो जाएगा। बताइए आप, भाई आपकी इनकम यदि 30 है तो आप 25 स्पेंड कर देते हैं, ये तो हमारा रूटीन है। इसका मतलब ये है क्या कि आपकी इनकम 150 है तो आप 130 स्पेंड कर देंगे, या फिर इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम यदि 1 करोड़ है तो आप 90 लाख कंजम्पशन में स्पेंड कर देंगे। फिर आपका कंजम्पशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो सही, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है, और इसी के बेसिस पर हमारी इकोनॉमी भी चलती है। इकोनॉमी में भी यही होता है कि जितनी इनकम बढ़ेगी ना तो कभी भी प्रोड्यूसर या हमारे जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। ये हम अब रीड करेंगे इसमें। एड इज ऑलवेज एक्सप्रेड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। एक ही बात है, प्लान बोल दो या विश बोल दो। नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ एडी एज शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स इन टेबल। प्लीज प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 8 कॉलम। 8 कॉलम बन जाए इतना आप टेबल बना लीजिए। वाई इनकम, एडी,
planned, PLANNED, planned expenditure. So dear student, it has positive relation. If our income will increase, then our expenditure pattern will increase. When you will prepare the table, something you should keep in mind, that when you will start, you should have first zero. इनकम जीरो है तो आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या होगा? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल यू विल मेक द कर्व। इसी टेबल के बेसिस पर आप क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे स्टार्टिंग में आपने ले लिया जीरो, इफ आवर इनकम इज जीरो, आवर एक्सपेंडिचर इज 30, इफ आवर इनकम इज 20, आवर एक्सपेंडिचर इज 35। देखो हो रहा है ना इंक्रीज, इनकम बढ़ती जाएगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। नाउ इनकम इज 40, एक्सपेंडिचर इज 40। यस, दिस इज द पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इनकम शेड्यूल क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस कट करेंगे। क्रॉस कट करेंगे इट मीन्स कि हमारा इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? इक्वल होगा। अब बताइए सिचुएशन क्या बताती है कि इनकम भी 40 और एक्सपेंडिचर भी 40, तो ये ट्रेंड हमेशा होगा। अभी देखिए इनकम 20 था और एक्सपेंडिचर कितना है? 35। तो बताइए एडी इनकम से ज़्यादा है या नहीं? है ना? तो इन दोनों कंडीशन में यदि हम देखें तो एडी इज ग्रेटर देन इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन और इनकम, और यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। अब देखिए उल्टा होगा, आवर इनकम इज 60, देन आवर एक्सपेंडिचर पैटर्न इज 45। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉलेज प्रोफेसर्स का या एक अच्छे बिजनेसमैन का, कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि आप स्टार्टिंग में 90%। अब एक बात बताइए, जैसे आपकी इनकम 10,000 है, दक्ष बताइए क्या कुछ बचने वाला है 10 में आज के टाइम में? 20 में क्या बचा लेगा? कोई सवाल ही नहीं है। किसी की 2 बच्चों की फैमिली है तो भी नहीं बचा सकता। हम तो बात गवर्नमेंट की कर रहे हैं, लेकिन एक आप इंडिविजुअल समझे तो सेविंग कब होती है? जब इनकम क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग पे हमारे एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या होंगे? हायर होंगे, फिर वो इनकम के इक्वल आएंगे, और फिर उल्टा होगा, फिर इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे। इनकम इज 60, एक्सपेंडिचर इज 40, इनकम इज 80, एक्सपेंडिचर इज 50, इनकम इज 100, एक्सपेंडिचर इज 55, इनकम इज 120, एक्सपेंडिचर इज 60। ये पैटर्न रहेगा। ये किसी भी एक्सपेंडिचर पैटर्न में यही होता है, और एक लिमिट के बाद वापस वही चीज़ स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर हमारा एडी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा किससे? इनकम से। तो ये चीज़ें हम टेबल से समझ सकते हैं। तो आप जब एग्जाम में भी टेबल बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना है, ऐसे नहीं है उठा के कुछ भी लिख दिया हमने। उनमें शेड्यूल होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। इससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट समझेंगे आप। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या है? ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, देयर इज ऑलवेज some minimum level of expenditures are there, and we can see it in our table। और आप अपनी टेबल में देख सकते हो
कि जब हमारा y है, y कितना है 0, उस टाइम AD कितना है 30. So this is showing that AD is minimum expenditure. AD is minimum expenditure. This AD is equal to 30 is independent from income. What is the meaning of this independent from income? Daksh, what is the meaning of this? AD is 30 is independent from income. इनकम से कोई लेना देना नहीं है. सो वी कैन से इट सी बार. सी मीन्स कंजम्पशन, और उसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो इसको आप क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन. या आप मिनिमम कंजम्पशन भी बोल सकते हो इसको. मिनिमम कंजम्पशन जो AD y0 देन AD is 30, दिस इज नॉन एज मिनिमम कंजम्पशन. मिनिमम कंजम्पशन को आप डिनोट किससे करोगे? सी बार से डिनोट करोगे. अब इसका में इनकम ऐड होती जाएगी तब टोटल कंजम्पशन बनेगा. टोटल कंजम्पशन विल बी डिनोटेड बाय सी. आगे मैं लिखवाऊंगा सी के ऊपर बार नहीं लगेगा, फिर ओनली सी का मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन. टोटल कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एक्स्ट्रा कंजम्पशन दोनों क्या होंगे? शामिल होंगे. ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एक्स्ट्रा कंजम्पशन विच इज बेस्ड ऑन इनकम. एक्स्ट्रा कंजम्पशन कितना होगा? इट विल डिसाइड बाय इनकम. ये किससे डिसाइड होगा? इनकम से डिसाइड होगा. और किससे डिसाइड होगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये रीड करेंगे आप इसमें. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है खर्च करने की क्षमता या प्रोबेबिलिटी. और ये सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है. और क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी. इसमें माइजर लोगों को आप कभी भी इकोनॉमी में शामिल नहीं करेंगे. वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होते. आप कह देंगे सर हमारे तो पड़ोस में एक आदमी है जो बिल्कुल ही खर्च नहीं करता, तो वो हमारी इकोनॉमी का कभी पार्ट नहीं हो सकता. प्रोपेंसिटी, यदि कुछ भी आप कंज्यूम करते हो तो कुछ ना कुछ प्रोपेंसिटी होगी. इसमें ऑब्जर्वेशन में आप सेकंड लिखिए, AD इंक्रीजेज as y increases. So AD is positively related to y. Already we have discussed that if AD increase, if y will increase. यदि y बढ़ेगा तो हमारा AD भी बढ़ेगा. तो AD और y में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. y will increase, aggregate demand will increase. Aggregate demand means demands of goods and services both. C सॉरी 3. C क्या 3 आएगा? इसमें लिखो, अभी बताया था मैंने आपको, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ y, after a certain level of y is reached, AD lags, LAGS lags behind y. लेग्स बिहाइंड y का मतलब क्या हो गया कि अब है ना AD है y के क्या चलेगी? पीछे पीछे चलेगी. पीछे पीछे का मतलब है कि अब क्या होगा? जैसे इनकम बढ़ेगी ना, तो इनकम जितनी बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड उससे कम बढ़ेगी, मतलब वो पीछे रहेगी. जितना इनकम बढ़ेगा उतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी. व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे लॉजिक क्या है? दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इफ इनकम विल इंक्रीज एवरीवन विल स्टार्ट टू सेविंग. लॉजिक क्या है इसके पीछे?
कि जब आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड एडी विल लैग टू behind y. Reason is that after a certain time period y will increase, people will start to saving. इसका रीजन क्या होता है कि उसके बाद लोग क्या करते हैं, सेविंग को स्टार्ट करते हैं. Yes, people will start saving as income will increase. Next we will understand aggregate demand curve, AD curve. अब ये जो AD जो कर्व होता है ना, ये देखिए, ये अभी अब यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप स्केल से बना सकते हैं अपनी कॉपी में. ये बिल्कुल अभी हो सकता है कि मेरे से थोड़ा आगे पीछे हो जाए. ये बनेगा 45 के एंगल में बनेगा ये, और इसको बोलेंगे वाई कर्व, इनकम कर्व. और ये अपना जीरो, और टेबल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम 20, 40, 60, 80, 100 और 120. और इधर भी ले लेते हैं हम 20 और 40 और 60. यस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मिनिमम कंजम्पशन? 20, 30, 40 कितना है? मिनिमम कंजम्पशन इज 30. हाउ यू विल आइडेंटिफाई? when income is 0, according to the schedule income is 0, then our expenditure is income is 0, then expenditure is 30. so minimum इधर आप लिख देंगे aggregate demand, और इधर लिख देंगे y को आप बोल सकते हो इनकम भी बोल सकते हो, और कहीं कहीं आपको जीडीपी भी लिखा हुआ होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो एडी कर्व है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उसकी स्टार्टिंग ही किससे होगी? 30 से होगी. ये देखो यहाँ पे आएगा 30. इट मीन्स इस कंजम्पशन को तो आप डिनाई नहीं कर सकते. और मुझे बताइए कहाँ पे है जहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों इक्वल है? दक्ष बताइए कौन से पॉइंट पे दोनों इक्वल है? 40 पे. तो 40 पे मैच करो, देखो इसको, ये 40 और ये यहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा? तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा. तो ये पॉइंट कौन सा होगा? E. और इस पॉइंट पे क्या होगा? AD इज इक्वल टू Y. होगा या नहीं होगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू Y. और बच्चों आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी रीड करेंगे हम. बट इन्वेस्टमेंट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम. उनका इनकम से कोई लेना देना नहीं है आपकी बुक में. और यूँ मान के चलिए मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट माना गया है, इनकम से कोई लेना देना नहीं है. तो इसमें इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रखा है, इसे 10 पे दिखा रखा है, तो आप लिख लीजिए. इन्वेस्टमेंट को ऐसे शो करेंगे. मुझे बताइए इस आई का, आई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप? The statement I have given you that there is no relation to income. Are you understanding? It is right. बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. स्ट्रेट लाइन है, उतनी की उतनी ही रहेगी. सो इट मीन्स इफ इनकम विल इंक्रीज इट विल नॉट इफेक्ट अवर इन्वेस्टमेंट पैटर्न. तो ये आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में रखना है. और इसका है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम, लिख लो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम.
independent from income. अब यदि इनकम बढ़ती है तो ये कर्व क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो इनकम ज़्यादा है तो ये 40 से भी स्टार्ट हो सकता है, 50 से भी हो सकता है। स्टार्टिंग इनकम पैटर्न कितना है कि इनकम यदि आपका 0 है तो 30, इनकम बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न भी बढ़ेगा। एडी कैसे इंक्रीज होगा, एडी इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि ये जो आपका पैटर्न है ना, इसमें तो कंजम्पशन होगा, इसको सी से लिखो आप, सी टोटल कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एक्स्ट्रा कंजम्पशन। इसको आप डिनोट किससे करोगे, सी से करोगे। सी का मतलब बार नहीं लगाना है सी पे, सी का मतलब टोटल कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये यहाँ पे होगा, आप चाहो तो इसको यहाँ लिख सकते हो, ये रहा सी बार, यहाँ पे आप लगा सकते हो सी बार स्टार्टिंग में। और उसके बाद एडी बढ़ता जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वैसे ही एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एडी कर्व को आप शो करेंगे ना, उसको आप आगे से ले सकते हैं। जैसे मान लो कि एक्सपेंडिचर पैटर्न 30 है, अब हमारा जो पैटर्न बढ़ेगा वो जैसे 40 से या 50 से ले लेते हैं हम, ये सीधा बनेगा, ये होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये है कंजम्पशन कर्व और ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी कंजम्पशन प्लस एक्स्ट्रा इनकम, कंजम्पशन प्लस एक्स्ट्रा इनकम। नेक्स्ट, इसमें ये जो कर्व है ना, ये एडी कर्व, ये दोनों चीज़ों से प्लस हुआ है। एक तो कंजम्पशन और एक है इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ से यहाँ ऊपर जो मूव हुआ है इसका रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट। नीचे देखो इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यदि उसमें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। ये आपको है ना, एडी को इस तरीके से लिखते हैं, सी प्लस आई। कंजम्पशन मीन्स टोटल कंजम्पशन और प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। टू टू वे इकोनॉमी, 3 वे इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी आएगा इसमें। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एडी, कंपोनेंट ऑफ एडी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और थर्ड आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों ही आएंगे, बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और इसमें आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ये शायद आपने रीड किया होगा पहले, नहीं किया? किया है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गया, ये तो हो गया सी, और ये हो गया आई, और ये हो गया जी, और ये हो गया एक्स माइनस एम। ये हमने उसमें रीड किया था एक्सपेंडिचर मेथड में। सी मीन्स कंजम्पशन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट। तो अब आप इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो होती है ना, ये 1 और 2, इसको मैं नंबर डाल देता हूँ, या ये ले लेते हैं, ये 1 और 2, 1+2, दिस इज नॉन एज क्लोज्ड इकोनॉमी ऑफ टू सेक्टर, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी ऑफ टू सेक्टर। और इसमें देखो, इसको मैं 3 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ 4। अब 1 to 3 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इकोनॉमी ऑफ 3 सेक्टर। थ्री सेक्टर, है ना। और यदि इसमें सारे ही मिला दिया जाए, 4 को भी मिला दिया जाए, तो फिर ये हो जाएगी ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ये कंपोनेंट है कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी फर्नीचर कैपिटल गुड्स, एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑल्सो। ये हमने रीड किया था ना, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज स्टॉक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट सोल्ड। और थर्ड हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों आएंगे, कंजम्पशन भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगा। किसका कंजम्पशन? गवर्नमेंट का। सम अमाउंट इज कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग रोड्स एंड ब्रिज, देन वो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनमें जो एसी वगैरह लगे हैं वो सब क्या है? कंजम्पशंस हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, जैसे प्लांट मशीनरी परचेज करती है, रेलवे वैगन वगैरह है, किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, उसके लिए कोई एसेट्स खरीद रखी है, बड़े बड़े प्लांट खरीद रखे हैं, तो वो इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों आएंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आप ऐड कर दोगे तो फिर वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। So now we will wind up the today's class, and the component of the aggregate demand separately we will read in our next class. Thank you very much.